Good morning, students. Today we are going to start video number 22, and from this onwards to 5 to 6 videos, we will cover hormones and glands and what are their functions, what is their role, and what are their structure now. Remember that NEET always have a tendency to ask questions in twisted form from all these concepts. So the first question of the series, hormone series, is about pituitary gland. Pituitary gland is attached to the hypothalamus by pituitary gland hypothalamus से किस चीज से अटैच है? कॉर्पस कैलोसम से, मेडुला ऑब्लोंगाटा, इनफंडिबुलम या पॉन्स? एंड द आंसर इज इनफंडिबुलम. ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस. पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको इनफंडिबुलम बोलते हैं. दिस कनेक्शन अलाउज द हाइपोथैलेमस टू रेगुलेट द पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेशन. जब तब तक ये कनेक्शन है तब तक हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशंस को रेगुलेट करता है. हाइपोथैलेमस एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर व्हाइल द पिट्यूटरी एक्ट्स एज द मास्टर ग्लैंड. ठीक है. एंड द कनेक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड इनफंडिबुलम. हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड की तरह काम करता है, और इन दोनों को कनेक्ट करता है इनफंडिबुलम. लुक एट द रॉन्ग आंसर्स. कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है. कॉर्पस कैलोसम का काम है दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करना. मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल्स योर इनवॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक हार्ट बीट एंड ऑल. And what does pons do? Pons is a part of the hind brain involved in respiration regulation. Pons जो है hind brain का part है और ये respiration को regulate करता है. Coming to question number 2, which part of pituitary stores and releases ADH and oxytocin? ADH और oxytocin को कौन सा part pituitary का जो है वो release करता है और store करता है? The options are adenohypophysis, pars distalis, neurohypophysis or hypothalamus. Which one does this? And the answer is neurohypophysis. So look at the explanation. The posterior pituitary or neurohypophysis, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं. ये एडीएच को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं. एडीएच मींस वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को स्टोर करके रिलीज करता है. दीज हार्मोन्स आर एक्चुअली सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस में बनती हैं ये हार्मोन्स, सिंथेसाइज होती हैं. देन दे आर transported to the posterior pituitary gland part of the pituitary where they are stored and when required they are released. So adenohypophysis क्या करता है? Adenohypophysis is the anterior part of the pituitary. Anterior part of pituitary is known as adenohypophysis and the posterior part is called neurohypophysis. Pars distalis क्या है? Pars distalis is the part that secretes growth hormone, TSH and ACTH etc. What does hypothalamus do? Hypothalamus synthesizes but does not store these hormones. Okay, अभी मैंने बताया कि hypothalamus synthesizes these hormones and then they are transported to the posterior pituitary, which is also known as neurohypophysis. Okay, coming to question number 3, excess secretion of growth hormone during childhood causes. चाइल्डहुड में अगर एक्सेस ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो तो क्या होता है? अच्छा, एक चीज यहाँ और बता दूं कि इस पूरे वीडियो में एट द एंड ऑफ द वीडियो आई हैव क्रिएटेड अ रैपिड रिवीजन ऑफ ऑल द हार्मोन्स दैट आर रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी और दैट इज स्टोर्ड इन पिट्यूटरी और पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. और दूसरा जो न्यू इनकलकेशन मैंने किया है वो है ग्लॉसरी. जो भी आपके टर्मिनोलॉजीज है ना, इनकी एक ग्लॉसरी मैंने क्रिएट की है जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये पूरा का पूरा वीडियो और पिट्यूटरी ग्लैंड. Coming to the question, excess secretion of growth hormone during childhood causes. Options are acromegaly, dwarfism, gigantism या myxedema. What is the correct answer? The correct answer is gigantism. ठीक है, या gigantism, जो भी आप बोलते हो. When growth hormone is excessively secreted during childhood before epiphyseal plates close, मतलब जब तक epiphyseal plates close ना हो जाएं उसको childhood stage कहते हैं. और उस स्टेज तक अगर excessive growth hormone secrete हो रहा है तो it causes abnormal increase in the height of the child and that particular process is known as gigantism. चाइल्डहुड में अगर आपका ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो रहा है तो जाइजेंटिज्म कॉज करेगा, और एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो दैट विल कॉज एक्रोमेगाली. ठीक है. एक्रोमेगाली अकर्स इन एडल्ट्स. ड्वार्फिज्म अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ
ग्रोथ हार्मोन एंड मिक्सेडिमा ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म। अब एक्रोमेगाली में क्या होता है, जाइजेंटिज्म में तो हाइट बढ़ जाती है, बहुत ऑकवर्ड सा एक ग्रोथ होता है बच्चे का। एक्रोमेगाली में हाथ और पैर, लिम्स जो होते हैं ना वो बड़े दिखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत बड़े दिखते हैं, सारे फेस के नोज माउथ ये सब बहुत बड़े बड़े से थोड़े दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगाली। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म में स्वेलिंग होती है, फेस पर स्वेलिंग होगी, बॉडी में स्वेलिंग होगी, मेंटल रिटार्डनेस फील होगा, वेट गेन होगा, सो ऑल दैट इज कॉल्ड मिक्सेडिमा। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन इन मैमरी ग्लैंड्स? किस हार्मोन के कारण मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोडक्शन होता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एफएसएच। एफएसएच मींस follicle stimulating hormone, ACTH. Which one? And the answer is prolactin. Prolactin actually stimulates the synthesis and secretion of milk after childbirth. Childbirth के बाद prolactin जो है वो stimulate करता है synthesis and secretion of milk in mother. Students often confuse prolactin and oxytocin. Prolactin और oxytocin में आपको बहुत ज्यादा confusion होती है, कारण कि आपको लगता है दोनों ही milk secretion से related हैं, लेकिन there is a difference. Prolactin is responsible for milk production. Milk का production हो गया लेकिन ejection नहीं हो रहा है. Ejection के लिए क्या चाहिए? Oxytocin. Okay? So prolactin actually helps in milk production and oxytocin helps in milk ejection. Oxytocin causes the milk let down reflex. Let down मतलब coming down of milk reflex. FSH acts on gonads and is responsible for follicle formation. And then ACTH stimulates the adrenal cortex. ये सारे मैंने लास्ट में इनके functions थोड़े elaborate करके बताए हैं. Coming to question number 5, diabetes insipidus occurs due to deficiency of. Diabetes कितने टाइप की होती हैं, कैसे होता है, वो भी लास्ट में मैंने बताया at the end of the video. Diabetes insipidus किस चीज की डिफिशियंसी से होता है? एंड द ऑप्शंस आर इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ADH और GH. एंड द आंसर इज ADH. ADH एक्चुअली helps the kidney to reabsorb water. ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ ADH से क्या होगा? इट विल लीड टू एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन या एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट. जब यूरिनेशन बहुत ज्यादा होगी तो थर्स्ट भी बहुत ज्यादा लगेगी. डाइल्यूट यूरिनेशन, बिकॉज यू फील थर्स्टी यू कीप ड्रिंकिंग वाटर, सो द यूरिन इज डाइल्यूटेड एंड frequent urination occurs. This particular condition is known as diabetes insipidus, or you can say diabetes insipidus के ये symptoms हैं. इंसुलिन डिफिशियंसी, जो आपके अदर ऑप्शन है वो देख लीजिए. इंसुलिन डिफिशियंसी से आपको डायबिटीज मेलाइटस होता है. डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो ATH के डिफेक्ट या डिफिशियंसी से होगा. थायरॉक्सिन डिफिशियंसी से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है एंड GH डिफिशियंसी से ड्वार्फिज्म होता है. इसको याद रखिएगा. Coming to question number 6, hoping you understood everything till question number 5. Coming to question number 6, which hormone is known as is birth hormone? Birth hormone किसको बोलते हैं? And the options are ACTH, oxytocin, prolactin and TSH. And the answer is oxytocin. Oxytocin को हम birth hormone बोलते हैं और oxytocin is also responsible for milk ejection. ठीक है? Oxytocin stimulates strong uterine contractions during childbirth. Childbirth के समय में जो uterine contraction होता है for the expulsion of the baby, that is caused by oxytocin. ठीक है? Hence it is known as birth hormone and it is also responsible for milk ejection after delivery. दो रोल है इसके, याद रखिएगा. ACTH क्या करते हैं? ACTH stimulates adrenal cortex. Prolactin is responsible for milk synthesis and TSH is responsible for thyroid stimulation. Coming to question number 7, the anterior pituitary develops from. Anterior pituitary किससे डेवलप होता है? न्यूरल एक्टोडर्म, मेसोडर्म, रैटकेस पाउच या एंडोडर्म, किससे बनता है एंटीरियर पिट्यूटरी? एंड द आंसर इज रैटकेस पाउच. व्हाट इज दैट? एंटीरियर पिट्यूटरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एक्टोडर्मल आउटग्रोथ. एक्टोडर्म में एक आउटग्रोथ हो जाती है जिसको बोलते हैं रैटकेस पाउच एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, एनाटॉमिकली. पोस्टीरियर पिट्यूटरी डेवलप्स फ्रॉम न्यूरल टिश्यूज. नीट को में इस कॉन्सेप्ट को याद करने का तरीका है एंटीरियर पिट्यूटरी ओरल एक्टोडर्म, पोस्टीरियर न्यूरल एक्टोडर्म. इसको याद रखिएगा.
न्यूरल एक्टोडर्म जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है मेनली फॉर्म्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपको इंटीरियर पिट्यूटरी का पूछ रहा है। देन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म जो आपका ऑप्शन बी और सी है, दे डू नॉट फॉर्म द पिट्यूटरी ग्लैंड, उनका पिट्यूटरी ग्लैंड के किसी भी पोर्शन के फॉर्मेशन से कोई रिलेशन नहीं है। अगेन मैंने ये चारों का जो स्ट्रक्चर और चारों का क्या रोल है, न्यूरल एक्टोडर्म, मेसोडर्म, रैटकिस पाउच और एग्नोडर्म का ये एंड में मैंने आपको बताया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स, कौन सा हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है? द ऑप्शन आर ACTH, TSH, FSH, LH। आंसर इज ACTH। ACTH का फुल फॉर्म है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म ही एक लाइन में पूछ देगा। तो ACTH stimulates the adrenal cortex and for what? To release corticosteroid, स्टेरॉइड हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन। चलिए TSH क्या करता है? TSH is a thyroid gland and FSH and LH are responsible for their functions in gonads. Okay, so these were the 8 questions on pituitary gland, very confusing बट स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपको अच्छे से इसको समझना है, याद करना है, वीडियो को रिवाइंड कर करके इसको याद कर लीजिए। चलिए रैपिड रिवीजन देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड सारे ये क्वेश्चंस। ADH डिफिशियंसी से क्या होगा? ADH डिफिशियंसी से डायबिटीज इंसिपिटस होती है। ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाए चिल्ड्रन में तो क्या होगा? जाइजेंटिज्म। अगर एडल्ट में ज्यादा हो जाए तो एक्रोमेगाली। Prolactin is responsible for milk production. Oxytocin is responsible for milk ejection and childbirth. Posterior pituitary stores ADH and oxytocin. Anterior pituitary develops from Ratkes pouch. So these were the concepts of the questions that we attempted today. चलिए ग्लॉसरी थोड़ी बड़ी है लेकिन इसको रोक रोक के पढ़िएगा जरूर। ग्लॉसरी से में सबसे पहला ADH क्या करता है? ADH का काम है एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसको डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम है इंक्रीजेस वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द किडनी एंड रिड्यूसेस यूरिन आउटपुट। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड चाइल्डबर्थ ड्यूरिंग चाइल्डबर्थ एंड मिल्क इजेक्शन आफ्टर डिलीवरी। ग्रोथ हार्मोन promotes growth of bones, muscles and body tissues. Thyroid stimulating hormone stimulates thyroid gland to release T3 and T4. ACTH adrenocorticotropic hormone stimulates corticosteroids. Acromegaly क्या होता है? Acromegaly जो होता है abnormal enlargement of hand, feet and facial bones due to excess GH formation in adults. Dwarfism stunted growth due to deficiency of growth hormone in children. Gigantism, excessive increase in growth due to overproduction of growth hormone. And myxedema is the severe hypothyroidism in adults characterized by low metabolism, puffiness of the face, body and lethargic condition. नेक्स्ट है डायबिटीज मिलाइटिस। क्या होता है? डायबिटीज मिलाइटिस इज कॉल्ड आल्सो नोन एज टाइप 1 डायबिटीज। इट इज एन ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स कॉजिंग लिटिल और नो इंसुलिन प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन इसको हम डायरेक्टली कैसे याद करते हैं? इंसुलिन डिफिशियंसी डायबिटीज मिलाइटिस, इसको टाइप 1 डायबिटीज भी बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज फिर टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस जो है वो कंडीशन है इन विच द बॉडी सेल्स बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन लीडिंग टू हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है उसका बॉडी सेल्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है और इस कंडीशन में आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई रहती है। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है? जेस्टेशनल डायबिटीज इज अ टेम्पोररी इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में जो आपको डायबिटीज होती है या शुगर लेवल जब ज्यादा होता है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस is a disorder caused by the deficiency of ADH leading to excessive dilute urination and increased thirst. न्यूरल एक्टोडर्म क्या करता है आपका? न्यूरल एक्टोडर्म इज a specialized ectoderm that develops the nervous system including the brain, spinal cord and posterior pituitary. Mesoderm क्या करता है? Mesoderm is the middle embryonic germ layer that forms the muscle, bone, blood, heart, kidney and connective tissues in the embryo. Ratkes pouch is the ectodermal growth from the embryonic oral cavity that develops into anterior pituitary gland. ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा ग्लॉसरी की, ये पूरा याद करेंगे आपके मतलब 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे तैयार हो जाएंगे। Endoderm is the inner embryonic germ layer that forms the lining of the digestive tract, respiratory tract, liver, pancreas and associated glands. So these were the concepts जो कि आपको डिटेल में क्वेश्चन में नहीं था तो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में इसको कवर कर दिया है।
So don't forget to read this glossary, read the rapid revision section, and also to attempt all the questions again and again. And I would like to tell you that with this video, we are going to make 5 to 6 videos in series on hormones and glands. Okay. So do let us know what did you like the most, what improvement do you want, or what is your progress. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to our channel and keep a pace of your preparation as well as increasing your scores day by day. Thank you.